are inspiring people for all of us. Out of them, I offer my homage to Dr. Jan Benny Hanstoy. Very good. Then my friend Dr. R.K. Sharma, principal. He is a very young, agile gentleman, never telling no to anybody, always positive. He has so many ideas with him to be translated in near and distant future. Only one thing is very important from him. He should give a word that he will live for 100 years. Another Dr. R.K. Sharma. There are two R.K.s here. I am very happy today because I am meeting so many old friends working together, hand to hand. And now here, very happy. One of them is R.K. Sharma, Dr. R.K. Sharma, who has been the Vice Chancellor of this institute once upon a time. Dr. Abhinandan Das ji, also a principal. Dr. Yogesh Sharma ji, and my very close friend, Dr. Thogiram Gogoi. He is in front of me now. And you are so quietly sitting and listening to this great man delivering very good lectures, knowledgeable. Very happy for this. I have in my mind one thing, that here there are guardians are also there. Maybe some of them may not understand English. And the last part of my deliberation, I will speak in Hindi also for them. Dear friends, especially our new students, newcomers, you are coming into this university with a promise. As a newborn child, come to this world with a promise by having this sort of feast, that I will do something, I will conquer this world, I will make everything good. This, you are also coming like that. But difficulty is this, that when we depart from this world, then we do not have this one, determination. We always go with this open hand, not taking anything with us. But when you will go back,
you will go with another determination to make this world better than the world of today where we are living in. Dear young friends, tomorrow is yours. With the older generations, with the blessings of the great men in the past, making our today, but it is not so satisfactory. Whatever we have done or we are doing today is not complete, not giving happiness to all. Tomorrow is yours. The young, agile gentleman, tomorrow is yours. You make a roadmap to make your tomorrow better than our today. Sit down together. Find out some ways and means, having some programs which will embellish the world, give happiness to all the people of the world. I am against the boundaries. Human beings should not have any boundaries, physical, geographical boundaries. Let us break all the boundaries, all the limitations, and have only one family, that is humanity. Human beings, wherever they are, wherever they may be, but there is only one family. It is told by the Vedas, and it comes to Ayurveda also. Ayurveda is a part of the Vedas. Vedas says that we are one only, one. There is no two things. Ekam eva aditiyam. Only there is one thing, that is one reality. Before starting something, I want to submit before you, the young doctors and the great intellectuals, cream of the society, the professors. Madam, you are the cream of the society. Churning the ocean of education system, you are brought out as a cream of the society, and therefore you are coming to this profession. At the very beginning, it was not for minting money, earning money. It was out of compassion you have come to this. I always urge the doctors, if they come here, come to the patient, then at least they should give a smile. We want from the doctors, right from the village doctors, village healers, after the professors like you, doctors like you, you give only one thing for us. What is that? A smile. In front of us. Your smile itself is a healing medicine for us. It does not incur any expenditure from your side to give your smile to us. From this or that point, all of us are today afflicted with some diseases.
maybe it is physical, maybe it is mental, maybe it is spiritual. And when we are all afflicted with the diseases, we are run after the pathies. Allopathy, homeopathy, heliopathy, naturopathy, and what not. So many pathies are there. But if there is no true pathy, very important for humanity, for all the creatures of the world, this is sympathy and empathy. If a doctor does not have sympathy in him, in his heart, if he is not empathetic to the sufferings of the lowliest and lost, the patients, all other pathies will not work at all. किन्नर गंधर्व देवताओं की बात नहीं, मानव से मानव का मुक्त मिलन चाहिए. Let the demigods do their work in the heaven, in the paradise. We have nothing to do with that. Let the Gandharvas go on dancing, singing all these things in their domain. We have nothing to do with it. We want to transform this world into paradise, into the beatitude, by breaking the barriers between man and man, between man and animal, between man and nature, between male and female, black and white, haves and have-nots. This is a very important thing. Then and then alone we can make a paradise here. Will it work? वहाँ मुश्किल है, मैं ज़्यादा खड़ा होकर के नहीं बोल सकता हूँ बिकॉज ऑफ ए डिजीज़. नीचे भी नहीं बैठ सकता हूँ, इसी कारण से एक कुर्सी मंगवा करके मैं बैठ करके अभी बोल रहा हूँ. आप क्षमा करेंगे मुझे. We want to make a paradise, a Catholicity of humanity, a Catholicity of the creatures of the world, with the trees and tendrils, the rivers and the ocean, the hills, hillocks and the mountains. This is our extended existence only. I do not understand one point that you have mentioned here, from tradition to transition. Where are you transiting? Why are you changing yourself in transition? What will be this full stop it? From transition again to totality. We are living a life for totality, full life, taking all things together, making one only. There are four very forceful things happening. One is a religion, second is politics, third is science, and fourth is spirituality.
Once upon a time, in the beginning of humanity, human history, religion was good thing. But as the things went by, religion has done so evil things in this world that every page of history is stained with the blood of human being fought for religion. You are boast of this democracy today. Tell me, is there any democracy today? When you are giving the ticket for a contender, believing in his caste and community, will that be a good democracy? Is it a democracy? Today also, maybe it is America, maybe everywhere in India also, including India. Here also, in name of democracy, there is one man's rule. I do not fight side of telling this thing openly before you and in the public domain also, that we are not following the rules of democracy. All are considered according to caste, creed, and community. So, if you go on with this religious mind, you will arrive at nowhere except destruction of humanity. Same thing happens with politics also. Politics is a good thing to organize people in a small way and destroying them again. Then what is the future of humanity? Two things. One is science. You are a man of science, sir. Madam, you are a man of science. Medical science, we say it's medical science. Medical science does not differentiate between man and man. I may be declared dacoit if somebody is in some encounter, if I am wounded and taking to you, then you will not tell me that you are a dacoit, I will not do it, not serve you. You do not say. You will see from the point of view of humanity, that is your duty as a scientist. And another thing is spirituality. What is spirituality? Seeing oneness in every diverse thing. Oneness, unity, feeling it, doing for it is called spirituality. We want now spirituality. If there is a synergy, sweet synergy between science and spirituality, then there will be a saner society, livable and lovable. And dear young man coming for this great work of becoming an Ayurvedic doctor, you have this responsibility. Not only Ayurvedic doctors, the healers, beginning from the village healers, the Reiki people, the allopathy, naturopathy people, Ayurvedic people, all these.
together you will have to do something. Holistic approach is necessary. Allopathy, homeopathy, heliopathy, naturopathy, Ayurveda, traditional system of medicines, the village, herbal healings, the Unani, the Siddha, the mantric heal. With a mantra also many things can be healed. That has also very great potential. Mantric heal, the pranic healing, the Reiki, the Sparsha Chikitsa. Go with a loving heart. Go with a pure heart and touch a patient. Your touch will heal that one. These are old sciences, but taking in a new sense today, all over the world. मैं ये बोल रहा हूँ, आप प्यार से, शुद्ध हृदय से, विशुद्ध हृदय से जा करके किसी भी एक दुखी जीव को आप थोड़ा सा अंगुली से स्पर्श करिए, तुरंत ठीक हो जाएगा. हो रहा है ऐसा. ये भी साइंस फिर से नया ढंग से आएंगे. एक समय ऐसा आएगा जिस समय इस स्पर्श चिकित्सा के लिए भी एक डिपार्टमेंट आपको खोलना पड़ेगा. What I am telling, among all the pathies, sympathy. कोई एक लड़की जो है मैट्रिक फेल कर गई, जा रहे हैं कहाँ, ट्रेन आ रहा है, उससे जान दे देने के लिए जा रही है. उनको पकड़िए, ले आइए, समझाइए. क्या समझाइए? अरे हमारे APJ अब्दुल कलाम भी कई बार फेल हुए हैं, जिसका आप तस्वीर लगा कर यहाँ रखा है, वो भी फेल हुए थे. लेकिन दुनिया का एक बहुत विख्यात साइंटिस्ट बने हैं वो. अब्राहम लिंकन 9 बार मैट्रिक फेल किया और 11 बार अब्राहम लिंकन इलेक्शन में हारे. लेकिन आखिरी जाकर के अमेरिका के सबसे प्यारा आदमी जो रेस्पेक्टेड पर्सन है, not only in America, all over the world also, it was Abraham Lincoln. ये बात अगर हम वो लड़की को बताते हैं कि मरने जब जा रही है आत्महत्या करने के लिए, उनको अगर हम बता देते हैं और उनको थोड़ा सा हम सहानुभूति देते हैं, सिंपैथी देते हैं, एम्पैथी देते हैं, आगे बढ़ जाएगा. ये बहुत ज़रूरी है. गांव में, समाज में लोग बहुत दुखी हैं. गांव के जो दूर दराज के उसी में हैं, ये हॉल जैसा, मीटिंग हॉल जैसा नहीं है. बहुत अप्स एंड डाउन्स से कांटा है, बहुत सारा स्टीपनेस है, प्रेसिपिटस है. उन लोगों का जीवन सोचिए. जो बिना खाए रात को सोना पड़ता है, वो लोगों के बारे में सोचिए. और उसको हीलिंग करने का, उसका रास्ता दिखाने को, जो गिरे हुए हैं उसको खड़ा करना है. जो खड़ा हो गए हैं उसको हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाना है. जो आगे बढ़ रहा है उसको डायरेक्शन दिखाना है. जो राइट डायरेक्शन में जा रहा है उसको ले जा करके गोल तक पहुंचाना है. Our final goal is a totality, fruitful and meaningful life, not successful life. There is a great difference between successful life and meaningful and fruitful life. We do not want successful life
by selling liquor, by possessing money, wealth and all these. We want meaningful life. We want fruitful life. All the great men of the world are not successful men. महात्मा गांधी सक्सेसफुल अभी नहीं है. हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब भी सक्सेसफुल नहीं है. उन्हें धर्म का नाम दिया इस्लाम धर्म. इस्लाम माने क्या है? शांति, भाईचारा. लेकिन हो रहा है क्या? इस्लामिक देश में कोई शांति हो रहा है? या नॉन इस्लामिक देश में शांति जो हम चाहते थे हो रहा है क्या? नहीं हुआ है. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इज ए फेलर. महात्मा गांधी इज ऑल्सो फेलर. The great sages and sadhus of the world, India and other parts, they are also Jesus Christ. जीसस क्या बोलता है? 3 लाइन में जीसस क्राइस्ट को आप समाप्त कर सकते हैं. Love thy neighbor as thyself. तुम्हारा जो पड़ोसी है, तुम खुद को जैसा प्यार करते हो, पड़ोसी को भी प्यार करो. दूसरा वाक्य क्या बोले? लव दाइन एनिमी. तुम्हारा जो शत्रु है, तुम्हारा जो लवर है, उनको प्यार करने से क्या है? उसको नया तो कुछ नहीं. तुम्हारा लड़के लड़कियों को, पुत्र को आप प्यार करते हैं, ये क्या है? उसको तो होता ही है. लेकिन लव दाइन एनिमी, तुम्हारा जो दुश्मन है, तुमको जो दुश्मनी करते हैं, उसको प्यार करो ना. थर्ड क्या बोल दिया? लव वन अनदर एज आई लव यू. लव वन अनदर एज आई लव यू. जैसे मैं तुम लोगों को प्यार करता हूं, ऐसे ही तुम एक दूसरे को प्यार करो. दिस इज ए सम टू द लव क्रिश्चियन रिलीजन. न ही बेरेन वेरानि समन्तिथ कुदासन, अबेरेन ही सम्मति ऐसा धम्म सनातन. बुद्ध बोलता है, बोयर के द्वारा बोयर को समाप्त नहीं कर सकते हैं. आग से आग को नहीं बुझा सकते हैं. आग को बुझाना हो तो ठंडा पानी चाहिए, जल चाहिए. अबेर नहीं सम्मति, बोयर को प्यार से ही आप बुझा सकते हैं. यही सनातन धर्म है. What I am going to tell you, I want to drive one point home very humbly. That is, great men in the world, they are failures. But their failures are the, हमारा क्या है? हमारा आदर्श है. डकैती करी पैसा ला करके, दारू पी करके, ये करके, पॉलिटिक्स करके, एक दूसरा को लात मार करके आप ऊपर बैठते हैं, वो सक्सेस हमको नहीं चाहिए. हमको वी वांट ए फ्रूटफुल लाइफ, वी वांट ए ट्रूथफुल लाइफ, वी वांट ए मीनिंगफुल लाइफ. दैट विल हैव टू बी डन बाय ऑल दिस. मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैंने अभी जो अलग अलग पेठिका ये दिया है, उसका रूट में लेकिन आयुर्वेद है. The root of all these disease and these ways is आयुर्वेद. आयुर्वेद का मूल में अगर आप जाएंगे तो तब पाएंगे ये पेड़ पौधा हमारा जो प्रकृति ने जो निर्माण करके हमको दिया है, वही लेकिन सबके सार में है. मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है मुझे. मैं बेयरफुटेड सोशल वर्कर हूँ. पैदल घूमता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ,
जो उसका यही करने वाला हूँ। ज़्यादा तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ आपके बारे इसके बारे में, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ ये प्रकृति ने जो निर्माण करके, निसर्ग ने जो निर्माण करके दिया है, उसी में ही सब औषधों का सार है। यहाँ से ही एलोपैथी भी बना है, यहाँ से ही होम्योपैथी भी बना है, यहाँ से अलग अलग जो है और सब बना है। उसका मूल में आपका ये है। इसमें योग भी आता है, प्राणायाम भी आता है, सब कुछ मिला करके आते हैं। आपको अभी क्या चाहिए? कुछ आपको संस्कृत सीखना जरूरी है। ये जो आप आयुर्वेद करने जा रहे हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों ने किया है, सौरक ने किया, सुश्रुत ने किया है, और ऐसा कई कई लोगों ने हमको आयुर्वेद का ज्ञान पहले दिया था। ये सब ने संस्कृत में लिखा है। लोगों को लगेगा कि ये भी संस्कृत कैसे सीखेंगे, क्या करेंगे, आज तो सब इंग्रजी भाषा में सब होता है, क्या करेंगे? कर सकते हैं। सर विलियम जोन्स, उसकी कहानी मैं बताना चाहता हूँ। पहला हाई कोर्ट के, कलकत्ता में हाई कोर्ट था, उसका चीफ जस्टिस विलियम जोन्स रहा। वो आकर के देखा कि यहाँ का रूट जो है, भारत जो बहुत मजबूती में है, सभ्यता संस्कृति में, हमको तो ये संस्कृत पढ़ना चाहिए। कौन पढ़ाएगा? ढूंढने लगे हैं कहाँ मिलेगा हमको शिक्षक संस्कृत पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। एडवर्टाइज या कभी कुछ नहीं हुआ। वो गोरा बंगाल समझ करके वो ये कर देते, कोई आते नहीं। बनारस के एक ब्राह्मण ने हिम्मत किया। क्या हिम्मत किया? कि मैं सिखाऊंगा उनको। उन्होंने कहा मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन मेरा कुछ शर्त है। बोला आप आ जाइए। मैं कैसे आऊँ? आप कुछ ये भेजिए मुझे आने के लिए, व्यवस्था करने के लिए। तो उन्होंने भेजा, ले आया उनको कलकत्ता। ला करके उन्होंने कहा ठीक है, मेरा कुछ शर्त है। क्या है? मैं जो बनारस में नहीं रह पाऊंगा, यहीं रहना पड़ेगा। मेरे लिए एक अलग घर बना दो। दे सकोगे? बोले देंगे। रोज गंगा जल ला करके मेरा घर जो है उसको साफ करना पड़ेगा, पोंछना पड़ेगा। ये भी करवाऊंगा। मुझे स्नान करने के लिए गंगा जल ला करके देना पड़ेगा कलकत्ता वहाँ से। बोले वो भी करोगा। मैं एक बार ही संस्कृत पढ़ूंगा, एक बार ही बोलूँगा। तुमको दूसरा दिन उसको पाठ करके बोलना पड़ेगा। करोगा वो भी? एक शब्द में अगर भूल होगा तो फिर 5 रुपया तुम्हारा फाइन होगा। उस समय 5 रुपया आप याद करिए। रॉबर्ट क्लाइव के दिन के बाद बोल रहा हूँ मैं। 5 रुपया फाइन देंगे। बोले वो भी होगा। मैं जब आऊँगा तो मेरा कपड़ा रख दूंगा, तुम नया कपड़ा मुझे देना पड़ेगा। बोले वो भी दूंगा। और कपड़ा मैं ले जाऊंगा, और नया कपड़ा। बोले ठीक है, दूसरा दिन भी नया देना पड़ेगा। हाँ वो भी करूँगा। सर विलियम जोन्स का संस्कृत सीखने का जो ये है स्पृहा, वो बता रहा हूँ मैं। वो कर कर उन्होंने संस्कृत सीखा। सीखने के बाद क्या हुआ? उन्होंने अभिज्ञानम शकुंतलम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञानम शकुंतलम को ट्रांसलेट किया। वो जाकर के पहुंचा जर्मन में वो अभिज्ञानम शकुंतलम पढ़ करके गेटे नाम करके महापंडित, महासाहित्यिक,
वो प्रभावित हुए, हो करके उन्होंने एक नाटक लिखा शकुंतलम जैसे ही, जिसका नाम है फॉस्ट, FAUST, फॉस्ट। ये जब पूरा जर्मनी में फैला, मैक्स मुलर नाम का एक पंडित, वो आ गए इंडिया संस्कृत सीखने के लिए। संस्कृत सीखे, सीख करके चारों वेदों का अध्ययन करके उसका जर्मन भाषा में अनुवाद किया। जब अनुवाद हो गया, उसका बाद में दुनिया भर में फैला। और आज अच्छा संस्कृत अगर बोलना हो, लिखना हो, तो आप जर्मनी चले जाइए। यहाँ भारत में होने से नहीं होगा इतना सुंदर। जर्मनी के लोग कहते हैं पूरा दुनिया फैल गया है, संस्कृत फैल गया। मैं क्या बोलता हूँ कि एक विलियम जोन्स ने जो शुरू किया था संस्कृत पढ़ने का, उसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि पूरा दुनिया में आज संस्कृत फैलने लगा फिर से। मुझे यही कहना है कि हमारा नया नया मित्र लोग जो आए हैं अभी यहाँ पढ़ने के लिए, संस्कृत देख करके आप घबरा मत जाइए। दुनिया भर में संस्कृत फिर से रिवाइव कर रहा है। संस्कृत का एक एक शब्द जो है आपको मोक्ष तक दे सकता है। वन सिंगल संस्कृत वर्ड कैन गिव यू इमांसिपेशन, मुक्ति आपको दे सकते हैं, इतना पवित्रता उसमें है। अहम शांति, अहम शांति, अहम शांति, मये शांति, मये शांति, मये शांति, आई एम दी पीस, आई एम दी पीस, आई एम दी पीस। इतना आप बोलिए, दुनिया बदल जाएगा। मैं दूसरा एक बात और बताना चाहता हूँ। बहुत ही था, लेकिन मुझे जो कहना था हमारे ज्ञानी लोगों ने, सब लोगों ने कह ही दिया। You have already told what I was to tell. Therefore, I do not want to repeat the things that you have already expressed with manifest candor. So, मैं दूसरा एक बात बोलना चाहता हूँ। इस जुबिन गार्ग नामर एक व्यक्ति हो गया, हम सब लोग रोते रहे उनके लिए। असम के लोगों ने रोया, मेघालय के लोगों ने रोया, भारत के लोगों ने रोया, पृथ्वी के लोग रोने लगे। अभी ये पेड़ पौधा को बड़ा प्यार करते थे। आप कोई भी शास्त्र निकाल लीजिए, वेद, उपनिषद, रामायण, उसका अध्ययन करने के लिए जो कहते हैं, उसका ध्यान करने के लिए कहते हैं कहाँ? पेड़ के नीचे। भगवान बुद्ध को जो एनलाइटनमेंट मिला है वो एक पेड़ के नीचे रह करके मिला है उनको। ग्रेट बनियन ट्री आज भी है वो पेड़ वहाँ। लोग बोलते हैं बुद्ध ने उसको बोधि वृक्ष नहीं किया है, बोधि वृक्ष ने बुद्ध को ज्ञान दिया। ये जो पेड़ पौधा है, वनस्पति है, उसमें जीवन तो है। अभी हमारा एक सज्जन ने अभी बताया था, RK शर्मा महोदय ने, कि हनुमान ने गंधमादन लाने के लिए गए। पहले समझा नहीं, बहुत सारा पौधा है, उसको उठा करके ले आया। लेकिन गंधमादन ने एक चीज देखा, हर पौधा से प्रकाश फैलता था, प्रकाश फैलता। तब समझा कि गंधमादन पर्वत है। यहाँ ले आया, ले आने के बाद जो चाहिए था सुसेन वैद्य ने उसको ले लिया। बाकी जो रख करके आना था उनका ठीक ढंग से जहाँ है वहाँ रख करके आओ। उसमें बहुत शक्ति है, उसको बर्बाद नहीं करना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। तो वहाँ जाके ले करके रख दिया।
मेरा कहना यह है, आयुर्वेद यही कहता है कि एक एक पौधा उसमें डिविनिटी है। द आयुर्वेद पीपल और द पीपल एट लार्ज शुड डिस्कवर, it is their ordained duty to discover divinity in every trees and tendrils. वहाँ एक डिविनिटी है, वो डिविनिटी हमको ये करना चाहिए। हमारा गांव में, समाज में ये था कि एक पेड़ को काटना हो तो पहले दिन क्या करते थे, उसके दीपक जलाते थे, प्रार्थना करते थे कि हमको उपाय नहीं, हमको अभी आपको काटना पड़ रहा है, हमको क्षमा कर बोल करके उसको करवाते थे। ऐसा बहुत सारा कहानियाँ अरविंद के आश्रम में हुआ। मैं अभी समय के अभाव से मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन एक प्रयोग आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक किताब है, आयुर्वेद के लोग को जरूर पढ़ना चाहिए, उसका नाम है द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स। द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट written by क्रिस्टोफर बार्ड। एक इंग्लिश बोटनिस्ट था। उन्होंने क्या किया है, उनके पास एक गैल्वेनोमीटर नाम करके एक मशीन था। वो मशीन क्यों रखता था, कोई अगर चोर या बदमाश हो, झूठ बोलता है, उसके अगर ग्रामोफोन जैसे वहाँ सिर पर लगा देते हैं वो पिन, और उसका बाद में उनको पूछते हैं। अगर वो सही सही बोलते हैं, स्मूथ चलता है। अगर सही नहीं बोल करके अगर झूठ बोला तो फिर खट 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 आवाज़ करके ग्राफ बढ़ जाता है। एक दिन गलती से ये क्रिस्टोफर बार्ड ने उसका जो ग्रामोफोन का जो गैल्वेनोमीटर का पिन है एक पेड़ में लगा दिया। अब अभी वो पेड़ का पत्ती तोड़ने के लिए गया तो फिर वो खट 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 आवाज़ करने लगे और ग्राफ बढ़ गया। अरे ये पेड़ के उसमें लगाया, उसमें क्यों हुआ है? बाद में उन्होंने कहा कि मैं इस बार दूसरा बार जाता हूँ, पेड़ का पत्ती नहीं तोड़ूंगा, लेकिन जाता हूँ ऐसा तोड़ने जैसा दिखाने के लिए। उस बार गए, वो पूरा कोई भी ये नहीं हुआ, रिएक्शन नहीं हुआ। धीरे धीरे इसका विकास करते गए और कहने लगे कि पेड़ पौधा भी बहुत कुछ हमसे भी ज़्यादा जानते हैं। और यहाँ तक वो किताब में उन्होंने लिखा कि आप अगर एक पौधा लगाया, बड़ा हो गया, आप 300 किलोमीटर दूरी पर रहने से भी उनसे बात कर सकते हैं, आप ठीक ही है क्या नहीं, कुशल मंगल में है क्या नहीं, वो पौधा वहाँ से बताएगा। यहाँ से बता देगा आप कुशल मंगल है या नहीं। By this I am going to drive one point home that the tree also knows much more than we do. हम जितना जानते हैं उससे भी ज़्यादा जानते हैं। दूसरा बात मैंने ये कहा कि हर पौधा में, हर घास के पत्ती में डिविनिटी है। बाटर डुबरी बन गसकत पड़ा, तारुवती पाते दिए स्वर्गर बतरा। बाटर डुबरी बन गसकत पड़ा। अब एक डुबरी का दूरबा का पेड़ है, छोटा सा घास है, आपका पाँव लग जाए तो गिर जाता है, लेकिन वो भी स्वर्ग का बतरा दे सकते हैं, मानिए आपको दे सकते हैं। तो इसीलिए ये सभी चीज़ें हमारा बहुत ज़रूरी है। और आज हम पेड़ पौधा इस ढंग से काट डालते हैं, सब कुछ कर से उसका भी प्रकृति का संरक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में ये सब सारा चीज़ें आ जाता है। आयुर्वेद इज ए वेरी extensive subject covering the whole humanity, whole worldly things together. हम तो यहाँ तक जाना पड़ेगा, तभी हमारा टोटलिटी आएगा और हमारा ये आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है। इस बात को भी हमको थोड़ा समझ लेना चाहिए।
जब समुद्र मंथन हुआ 14 प्रकार के रत्न निकला है, ज्वेल 14 प्रकार के। पहला लेकिन क्या आए हैं मालूम है? कालकूट विष आया, डेडली पॉइजन। एक पात्र में वो पॉइजन आया है और काला काला धुआं उसमें से निकालने लगे हैं। चारों ओर लोग मरने लगे, देवता असुर सब लोगों का हालत खराब हो गया है। उस समय देवता लोग जाकर के श्री हरि को नमस्कार करके कहा कि ऐसा हालत हो गया, हम क्या करें? बोले हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को जाना है भगवान शंकर जी के पास, शिव शंकर के पास, शिव शंभू के पास जाओ और वो कुछ करेगा। फिर शिव शंभू के पास गए और जाने के बाद उनको कहा कि ये हाल है, दुनिया तो बचेगा नहीं अभी, ये हालत कालकूट विष का जो जहर है चारों ओर फैले हैं। शिव जी आए और नमस्कार किया और उसको ले करके पी गए चुपचाप, और उनका गले में रख दिया और गला नीला हो गया है, इसलिए उनका नाम नीलकंठ बना है। क्या कहना चाहता हूँ? दिस लाइफ इज एन ऑशन। Here there is poison and nectar at the same time. जीवन को आप अगर ये करें, चार्निंग करेंगे, दोनों निकलेगा। लेकिन आप अगर आपका जीवन से केवल अमृत ही निकालना चाहते हैं तो व्यर्थ होगा। अमृत के साथ विष भी आपका जीवन में आएगा, पहले विष ही आएगा, जहर ही आएगा पहले। इस जहर को कंटेन चुपचाप करने के लिए सीखना चाहिए, और उसका बाद में अमृत आएगा। और एक एक करके लक्ष्मी आ गए थे, ये कामधेनु गाय आ गए थे, केले के पौधा आ गए थे, और कई कई चीज आए। Your life itself is an ocean where poison and nectar are there. आपके इसमें ब्रह्म कमल भी हैं जिसमें भगवान रहते हैं, और इसमें विष्ठा मूत्र वो भी है। दोनों को अलग करने का जो ज्ञान होना चाहिए हो जाए तो काम होगा। Dear friends, I am very happy and at the same time grateful that you have invited me to tell something in front of you, but I am a layman, not expert like you. तथा फिर भी मैं हिपोक्रेटिस का दिखता हूँ। हिपोक्रेटिस ने जेसस का इसका जन्म के 460 वर्ष पहले, बिफोर BC, बिफोर क्राइस्ट, एलोपैथी पश्चिमी जो मेडिकल ज्ञान है उसका शुरुआत किया था, और बहुत साइंटिफिकली किया, और उसका असर पूरा दुनिया भर में हुआ। हम लोगों ने आयुर्वेद का इतना सब कुछ किया, योगा का किया, दूसरा किया था, लेकिन हमने साइंटिफिकली जो रिकॉर्ड करना चाहिए था ये हमारे से हुआ नहीं। हम लोगों ने एक कोई औषध निकाला, उसका कोई एफिकेसी आ गया, दूसरा को बताते नहीं, उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, जो लिखना चाहिए वो लिखना नहीं हुआ, इसीलिए हम पीछे रह गए। और हिपोक्रेटिस ने जो शुरू किया था ये आकर के आज आधुनिक जो एलोपैथी वहाँ तक पहुँच गया। उन्होंने कई चीज़ रख दिया था डॉक्टर के लिए। डॉक्टर को तो गीता का भक्त होना चाहिए,
शत्रु मित्र उदासीन, ये दोनों के लिए समान भावना लेकर के करना चाहिए। उन्होंने एक उसी समय जीसस क्राइस्ट का जन्म का 460 बरस पहले ही एक डॉक्टर कैसा होना चाहिए इसके बारे में कुछ बताया, और आज उसी को ही डॉक्टर लोगों को संकल्प दिलाते हैं। नर्स को, ये मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग हैं उसको ये संकल्प दिलाते हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ सुनाता हूँ। I do solemnly swear by that which I hold most sacred, that I will be loyal to the profession of medicine and just and generous to the members. हम लोग हैं मेंबर, हम लोग पेशेंट हैं, हम लोग मेंबर्स हैं। हमारे लिए भी डॉक्टर को जस्ट और जेनरस होना चाहिए। That I will lead my life and practice my art in uprightness and honor. That into whatsoever house I shall enter, काबार घर जी किसी के घर में अगर जाऊं बीमार को दुरुस्ती करने के लिए, it shall be for the good of the sick, जो बीमार है उसी के लिए, उसका अच्छा के लिए, to the utmost of my power, I holding myself aloof from wrong, from corruption and from temptation and other vices. That I will exercise my art solely for the cure of my patient and will give no drug performed to operation for a criminal purpose, even if solicited, far less suggested. That whatsoever I shall see or hear of lives of new, which is lives of man, which is not fitting to be spoken, I will keep invariably secret. These things I do promise, and in proportion as I am faithful to this my oath, may happiness and good repute be ever mine, the opposite if I shall be forsworn. आज इसी को ही पढ़ाते हैं। आप जब डॉक्टर बनेंगे आपको ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बदल करेगा, लेकिन आपको यही पढ़ाएगा। फाइनली कैरेक्टर एंड गुडनेस, ये दो चीज़ ही आपको एक डॉक्टर के तौर पर बचाएगा। विथ ऑल दीज वर्ड्स आई एम अलाउड टू स्पीक वेरी लिटिल by our friend here, so I want to make a full stop here, thanking all of you, giving a very patient hearing to me. Thank you very much. Namaste.